चलिए, very good morning. So we were doing practical geometry. 2 questions we have done. Exercise 10.1. Third question we have to start with. Let us start with question number 3 of the exercise. Get ready with your construction material. You will make it side by side, right? So third question is L. Let L be a line and P be a point. Note on L. Through P, draw a line M parallel to L. यहाँ तक तो आपको पता ही है, हमने कल सीखा that how to draw a line parallel to a given line from a point. Note on it. चलिए करते हैं draw. दोबारा से एक बार बता देती हूँ. First of all, he says draw a line L. So you draw a line L. Draw a line L. Draw a line L. What he says take a point P, not on L. That means P is to be taken anywhere. I am taking P here. P, take a point P, not on L. I am taking it like this. Now through P, draw a line M parallel to L. We have to draw a line M parallel to L, which is passing through P. So if you want to draw a line parallel to L, you have to take a point on L. I am taking it to be A. And then you have to join these 2 points. You might remember it that yesterday we have done this. I'm just repeating yesterday's topic. Now, how to draw the parallel line? Take the compass, make an arc here like this. Make an arc here like this. Call this point to be B and C. With the same length of the compass, same process is to be followed at the point B also, taking at the point P also, taking P as center, you will make an arc. You will make an arc like this, right? आपने इस तरह से arc बना लिया. Now, as the alternate interior angles to be equal to make the lines to be parallel, so you just measure this angle. इस एंगल को आपने इतना कंपास आपने ओपन करना है. टेक दिस पॉइंट टू बी डी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओपनिंग द कंपास up to this length, putting the needle at the point D, make an arc like this. Alternate interior angles they get equal. Now mark this point to be E. Join PE. So PE is a line parallel to L. I'm not going to write the steps of construction because yesterday I told you. अब इसके अब अपने आप लिखोगे. 2 क्वेश्चंस के मैंने लिखवा दिए, बाकी अब अपने आप लिखोगे अब. ठीक है. Next question, what he says in the same question. Now join P to any point Q on L. Choose any another point R on M. Now join P to any point Q on L. Choose any other point R on M. Through R, draw a line parallel to PQ. Let this meet L at S. What shape do you get? चलो anyhow. First of all, he says take a point Q on L. हमने कोई point Q लेना है, कहीं पे भी लेना है, हम यहाँ ले लेते हैं. I'm taking Q like this. ठीक है? Take any point Q on L. I'm taking it like this. Join PQ. P and Q को join कर दो. Join PQ like this. Whatever is being told in the question, same I am doing. Nothing is from myself. Whatever it's been told in the question, same I am doing. Right? Now he says choose a point R on M. अच्छा, ये लाइन, इस लाइन का नाम M रखो. इसने बोला इसको M. This is M. Line is M. Choose a point R on M. We choose a point R on M. हमने R ऐसे choose a point R on M. So I'm choosing a point R on M like this. ठीक है? Now he says through this point R, draw a line parallel to PQ. अब आपने R से PQ के पैरेलल जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है. Through R, you have to draw a line parallel to PQ.
राइट। सो आपको पता है पी क्यू के पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करते हैं हम, तो क्या करते हैं, वी जस्ट मेक द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टू बी इक्वल। मान लो मैंने इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, ये मेरी पी क्यू लाइन है ना, तो ये पॉइंट पी हो गया, दिस इज पॉइंट पी। मैंने यहाँ पे एक लाइन पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करनी है, सो इट मीन्स वट एवर आई डिड विद एल, सेम थिंग आई विल डू विद पी क्यू। मुझे पी क्यू के साथ वही करना है जो मैंने एल के साथ किया, राइट। सो मुझे पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो व्हाट आई शुड डू, सबसे पहले अब आपको थोड़ा सा कॉपी को टिल्ट करना पड़ेगा। आपको पता है पी क्यू के पैरेलल जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें सबसे पहले एक पॉइंट आर से ड्रॉ करनी है ना लाइन, आर को पी क्यू पे किसी पॉइंट के साथ हम ज्वाइन करते हैं, यू नो, आर को हम पी क्यू पे कोई पॉइंट लेते हैं, उसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो आर तो पहले ही पी क्यू पे एक पॉइंट पी है उसके साथ ज्वाइन है, तो हमारा एक काम पहले ही हुआ पड़ा है कि R is joined to a point P which is on PQ। बस हमें सारा प्रोसेस P के लिए रिपीट कर देना है। क्या करेंगे, यहाँ पे you will draw it like this। आपने यहाँ पे एक सर्कल मार्क कर लेना है, सेम लेंथ का रादर मार्क करो जितना आपने नीचे किया हुआ है, सेम लेंथ का मार्क करो, सेम लेंथ का ही सर्कल मार्क कर दो, राइट। सेम लेंथ का सर्कल हमने पी पे मार्क कर दिया। अब हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए, हमने आर पे वैसा ही एंगल बनाना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पे भी वैसा ही बनेगा, राइट। तो व्हाट वी विल डू, सेम वी विल डू विद आर, आर पे लगा दो ऐसे आप, आर से ये लगी आर पे आर। अब ये एंगल इधर है, तो आर वाला एंगल इस साइड आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम ले रहे हैं, दिस इज द लाइन and I'm taking this to be transversal, so this is alternate interior, ठीक है, ये हुआ। अब इस पॉइंट ने आर को जहां पे मीट किया, उस पॉइंट से हमने यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, ठीक है। अब इसको कर दो ज्वाइन, you get a line RS। कैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई, देखो जरा, मैंने ये वाली लाइन PQ के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ थ्रू R, R से होती हुई PQ के पैरेलल, PQ के पैरेलल ये लाइन कैसे बनी, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। यस गौरीश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। मैम एक टाइम जो आपने आर जो पैरेलल लाइन की फॉर्मेशन की, एक टाइम दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बेटे अब हमारा सारा काम पी पे है, मैं इसको इधर करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा पॉइंट है पी, ये लाइन है पी क्यू, हमें इसके पैरेलल आर से लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या रूल होता है लाइन ड्रॉ करने का, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन, हम उस लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं और जिस पॉइंट से ड्रॉ करनी होती है उसके साथ उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। पहला स्टेप यही होता है ना, यस मैम। लाइन पे एक पॉइंट लेते हैं और जिस पॉइंट में से लाइन निकालनी होती है उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो लाइन पे पहले पॉइंट पी आर पॉइंट के साथ ज्वाइन है, तो पहला काम तो खत्म ही हो गया। मुझे आर से लाइन ड्रॉ करनी थी और आर पी क्यू पे एक पॉइंट के साथ पहले ही ज्वाइन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है तो मुझे यहाँ से पहले एक सर्कल लगाना पड़ेगा, ऐसे मैंने लगाया आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे आप इस पॉइंट का चाहे नाम रखो टी, this is T and this is you can say U, ठीक है। ये एंगल बना, ये एंगल बना। अब मुझे R पे यही एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने क्या किया, R पे कंपास रख के गोला लगाया, लगाया गोला, इस गोले ने इसको यहाँ पे जहाँ पे कट किया वहां पे रख के ये एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ताकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, और इसको यहाँ पे ज्वाइन। इज इट ओके? ओके मैम। सेम वाले साइड पे किया ना, शायद इसलिए आपको कंफ्यूजन हो। साविया, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? जो नीचे आपने बी से परपेंडिकुलर लिया इधर जो लाइन आपने खींची है इधर ए वाली। बच्चे स्पीक क्लियरली, योर वॉइस इज नॉट दैट मच क्लियर। मैम जो इधर
आपने नीचे एक सेमी सर्कल बनाया ना नीचे लाइन पे, ये वाली लाइन इधर, मैम नीचे, नीचे एल पे, एल ये, लाइन पे। हाँ हाँ, यस मैम। मैम तो इधर ए से लाइन, तो वो परपेंडिकुलर है। वो हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। ए पॉइंट मैंने ऐसा कहा, मर्जी ले लो आप, ए पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, आप यहाँ ले लोगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। एनीवेयर यू कैन टेक। इज इट ओके ओके मैम। जसवीन? ओके मैम। जसवीन, मैम जो आपने आर की आंख बनाई है मैम, मुझे उसके बाद समझ नहीं आया पहले कैसे करना है। मैम एक बार रिपीट कर पी दो। पे आपने प्रोटेक्टर बना ली, ठीक है? मैम ठीक है यस जसवीन, मैम। ये वाला बना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि इस लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। यस मैम। अब ये हमारी ट्रांसवर्सल है, यहाँ से पैरेलल लाइन निकलनी है, तो हमने आर से पहले एक आर्क वो लगा ली, प्रोटेक्टर का साइन बना लिया, ठीक है? यस मैम। अब ट्रांसवर्सल एंगल है, ट्रांसवर्सल पॉइंट जो है उसके साथ आर को काट दिया। आप इसका नाम रखो, इसका लेट इट बी वी एंड लेट इट बी यू कैन से ई। तो आपने क्या किया, जो आपके पास यहाँ पे रख के इस पॉइंट को कट किया ट्रांसवर्सल को, उसका नाम बी रखा, और इस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मेजर करके बी पे रख के उतना ही एंगल काट दिया। तो ये दोनों एंगल्स यूटी एंड बीई दे आर सेम, क्योंकि हमने यूटी जितना ही बीई को काटा है। एम आई क्लियर जसमीन? यस मैम। These are ओके the मैम। two lines. These are the two lines. This is transversal such that this angle and this angle, alternate interior angles, are getting equal. Am I clear? ओके मैम। ठीक है? Now यस मैम। ये बनाने के बाद थैंक यू मैम। let this line meet at S. S point पे L को ये line meet कर गई, मैंने S point ले लिया। He says, what shape do the two sets of parallel lines in? ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये इसके पैरेलल आ गई, ये इसके पैरेलल है, ये हमने ड्रॉ करी है, और ये इसके पैरेलल ड्रॉ करी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। कहता है ये दोनों पैरेलल लाइंस का सेट क्या बना रहा है? ये क्या बना रहा है? मैम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के तो सारे एंगल 90 होते हैं। एक्चुअली आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स नहीं ना किया हुआ, मैम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो आप लिखोगे here PQ parallel to RS and L parallel to M. This implies PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. कुछ नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन में दो दो पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट हो गई, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। हाँ जी हरमीत, हरमीत सिंह। मैम एक बार मैम थोड़ा सा दोबारा समझा दो मैम। आर से मैम, मैम आर वाला मैम दोबारा समझा दो मैम, नेटवर्क नहीं आ रहा। सिर्फ यहाँ पे हमने आर लाइन से निकलती हुई पीक्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। मेथड क्या होता है? पी से एक बड़ा आर्क लगाया और पी को आर से पहले ज्वाइन करना था, वो पहले ज्वाइन हुआ पड़ा है। आर्क लगाया बड़ा, उसके बाद आर से भी वही आर्क लगाया बड़ा, उसके बाद ये जो एंगल है पी लाइन वाला, यहाँ पे एक पॉइंट आया था इस आर्क का, उतना ही एंगल यहाँ बना दिया हमने, दिस इज बीई। ये एंगल यहाँ पे बना दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, लाइंस पैरेलल। सो ये लाइन इसके ये लाइन इसके पैरेलल, तो PQRS इनक्लोज द पैरेललोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ, बस आपने ये बहुत सारी थ्योरी दी हुई है क्वेश्चन में, बट आपने सिर्फ एक मेथड याद रखना है, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। मेथड मैं बता चुकी हूँ, सेम मेथड यू विल फॉलो। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन विच वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। चलिए एक्सरसाइज 10.2। Exercise 10.2. Question number first. What he says, construct a triangle XYZ in which XY is 4.5 centimeter,
4.5 centimeter, YZ 5 centimeter, and ZX 6 centimeter. बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, जो आपने कंस्ट्रक्ट करना है, आपने सबसे पहले इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि हमें उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी है. वी आर प्रोवाइडेड 3 साइड्स, हमें 3 साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल व्हेन ऑफ साइड्स आर गिवन. ठीक है, जब 3 साइड्स हमें दी हुई है, पहले आप रफ बना लो, रफ फिगर बनाते हैं, रफ स्केच. ऐसे होता है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जहां जहां जो है वहां वहां लिख लो. एक्स वाई 4.5, वाई जेड सॉरी एक्स वाई 4.5, वाई जेड 5 एंड एक्स जेड 6. मेक द रफ फिगर. चाहे आप अपने हैंड से ही रफली बना लो बिना स्केल यूज किए. मेक इट रफली, रफ फिगर बना लो आप. दिस इज अ रफ स्केच. नाउ आई विल मेक द फेयर स्केच. फेयर स्केच बनाते हैं, देखना जरा ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेस वाली लाइन ड्रॉ करनी है. बेस वाली लाइन कितनी आई है रफ स्केच में? वाई जेड कितनी है? 5 सेंटीमीटर. चलो स्केल की हेल्प से यू ड्रॉ 5 सेंटीमीटर. फाइव सेंटीमीटर ले लो स्केल की हेल्प से. नाम इसका क्या है? वाई जेड. रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा. मेक द रफ स्केच. इट इज वेरी नेसेसरी टू मेक द रफ स्केच बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट. हरमीत सिंह लर्न दिस. वो अगर कुछ रह भी गया आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो. सेम लाइन ड्रॉ करने का. अब हैंड अपना डाउन कर लो. अब पहले इसको सीख लो. अब ट्राइंगल को वाई जेड हो गया. ठीक है, सबका वाई जेड बन गया. रफ स्केच विल गाइड यू व्हाट टू डू. वाई एक्स कितना? 4.5. ओपन द कंपास ऑफ लेंथ 4.5. 4.5 लेंथ की कंपास खोलो. चलो सारे 4.5 लेंथ की कंपास ओपन करो. कीप द नीडल एट द पॉइंट Y एंड मार्क आर्क लाइक दिस. आपने एक आर्क लगा दिया. Open the compass of length 4.5. Mark an arc upper side. Okay. Now see xz कितना है? 6. Now open the compass of 6 centimeter. Open the compass of 6 centimeter and mark an arc cutting the previous arc. Mark an arc cutting the previous arc. Now according to our rough sketch where these two arcs are meeting, वहां पे डॉट लगा लो और उसका नाम रख दो x. Mark it to be x. जहां पे आपके दोनों आर्क्स मीट कर रहे हैं वहां पे डॉट लगाते हुए उस पॉइंट का नाम रख दो x. अब xz को ज्वाइन कर दो. xz को ज्वाइन कर दो और इधर से xy को ज्वाइन कर दो. अब डायमेंशन लिख दो. यहाँ पे 5, यहाँ पे 4.5 एंड यहाँ पे 6. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर पेपर में पूछे हैं तो लिखने हैं, अगर नहीं पूछे तो नहीं लिखने. एक क्वेश्चन के मैं लिखवा देती हूँ, बाकियों के आप अपने आप लिखो. ठीक है. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ yz इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ yz is equal to 5 centimeter. Second step, taking y as center. y पे हमने नीडल रखी थी तो taking y as center. Cut an arc. Draw an arc. Draw an arc of 4.5 centimeter. Third step, taking z as center. यहाँ पे टेकिंग y as center, taking z as center, draw an arc of 6 सेंटीमीटर. अब आपने ये जो आर्क लगाया z को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर का,
This is cutting the previous arc. Cutting the previous arc at which point? At x. Next step. Join xy and xz. Next point. XYZ is the required triangle. Whatever we did, we just have explained it in our own words. हमने उसको अपने वर्ड्स में उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, उस कंस्ट्रक्शन की जो भी हमने बनाया है उसको हमने अपने वर्ड्स में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया. These are the steps of construction. Rough sketch is important. Then how to make the fair sketch. ये arcs अच्छे से देखो कैसे लगे थे, ठीक है. They are meeting and then writing the steps of construction. Third and fourth question you will do yourself. Third, fourth, मैं second करवाऊंगी. हाँ जी, Saksham Smart, what do you want to ask? मैम आपने मैम x का आर्क कैसे बनाया? बेटे सबसे पहले देखो रफ स्केच आपको दिख रहा है. रफ स्केच यस मैम. यहाँ पे y x कितना है, 4.5 है ना. तो मैंने क्या Yes, किया, ma'am. y पे रख के 4.5 की कंपास खोल के इस तरह से आग लगा दी. ठीक है सक्षम. यस मैम. और उसके बाद रफ फिगर में zx कितना है, 6. तो z पे रख के ऊपर की तरफ 6 लगा दिया. पहले आग को कट करना ऐसे. ठीक है. ओके सक्षम. यस मैम. थैंक यू. तो आप जहाँ पे कट करेंगे वहां पे डॉट लगा के उसका नाम फिगर के अकॉर्डिंगली, रफ स्केच के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, x रख दिया उसका नाम एंड x z. और मैम जो y और z की जो नीचे वाली बेस लाइन है उसको हमको 5 सेंटीमीटर लगाना है. बच्चे जो गिवन होती है, जैसे ये देखो मैंने पहले रफ स्केच तभी बनाया, तभी मैंने लाइंस लिखी कितनी कितनी है. yz मेरे पास गिवन में 5 है, xy 4.5 है, zx 6 है. ठीक है. ओके मैम. हर बार 5 नहीं, हर बार जो दिया होगा वो लगाना है. यस मैम. हाँ जी हरमीत सिंह, आपका क्या डाउट है, आस्क. मैम एक बार मैम स्टेप्स मैम बोल दो मैम. मैं ना बोर्ड नहीं दिख रहा नेटवर्क के कारण. बेटे जो किया वही स्टेप्स लिखे. ड्रॉ yz इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, टेकिंग y as center, draw an arc of 4.5 centimeter, then taking z as center, draw an arc of length 6 centimeter, cutting the previous arc at the point x, join xyz, join xy and xz, and xyz is a required triangle. So इसका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करोगे. नाउ आई एम टीचिंग द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द सेम एक्सरसाइज. चलिए लेट अस स्टार्ट. सेकंड क्वेश्चन. Construct an equilateral triangle of side 5.5. Can anyone tell me the definition of equilateral triangle? Definition of equilateral triangle. Yes, Chehek, you tell. What is an equilateral triangle? बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक. What is an equilateral triangle? Not audible. Gorish, you tell. Yes, ma'am. An equilateral triangle is a triangle in which all the sides are equal. All the sides are equal. चलो पहले रफ बनाते हैं. मैंने नाम रख दिया ABC. हर साइड 5.5. अब देख लो सक्षम, मैंने यहाँ पे 5.5 लिखा है क्योंकि साइड की वैल्यू 5.5 है. चेंज हो जाती है, जैसी क्वेश्चन में हो वैसी लेनी पड़ती है. दिस इज योर रफ स्केच. This is rough sketch. Let us draw fair sketch. Fair sketch.
What to do first? Draw a line BC equal to 5.5 centimeter. चलो draw करो BC 5.5. ड्रॉ BC. पहले नेमिंग की होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी हमें इसको क्या लिखना चाहिए. ड्रॉ BC 5.5. Draw a line BC. Hands down कर लो. That was just because of you are want to give the answer. Now you can hand down the hand. ठीक है. Draw BC 5.5. अब AB कितना है? 5.5. Open the compass of length 5.5. Open the compass of length 5.5. Taking the needle at the point B, cut an arc like this. ठीक है. 5.5 centimeter needle you have to open and cut the arc like this, upward direction. Now, putting the needle at the point C, again AC is 5.5, तो 5.5 का arc C पे रखे, cutting the previous arc. At which point? देखो नेम क्या है? A. Mark it to be. ठीक है. Join कर दो AB को and join AC. Join AB, join AC. Steps आपको पता ही है, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे हम स्टेप्स लिखेंगे. मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. सेकंड, टेकिंग B as center, draw an arc of 5.5 centimeter. Then taking C as center, draw an arc of 5.5 centimeter. Cutting the previous arc, at A. Cutting the previous arc at A. Fourth point, join AB and AC. ABC is required triangle. These are the steps of construction. Yes, Adgun. मैम ये जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप साइड बाय साइड लिख रहे हो मैम, अगर एग्जाम में हमें आया तो ये लिखने जरूरी है? If it is asked, also write the steps of construction. Then it is necessary. Otherwise, you can leave. ओके मैम, थैंक यू मैम. तो इसका जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करोगे. So you see that three things are, one thing is very important when drawing a triangle. Its rough sketch is very important because rough sketch will tell us what to take at the bottom and how to name it, which value should be mentioned, and moreover यहाँ पे भी लिखो 5.5 मार्क करो 5.5. आपको कोई भी साइड आ जाए, मान लो आपके पास आ जाए ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तब आपने सारी 6 लिख देनी है. आ जाए 8 सेंटीमीटर, तब आपने वैल्यू सारी 8 लिख देनी है. सक्षम है? एम आई क्लियर टू यू? यू वर सेइंग दैट हमेशा नीचे 5 लेना है. Have you got my point that whatever is given according to that you have to do the construction? SS brothers, if you are listening. Okay. चलिए second question you will do yourself. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में ड्रॉ करने से पहले कोई बता सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज? सेकंड क्वेश्चन में कैसा ट्रायंगल होगा ये? उसने पूछा ना व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? Isosceles. Isosceles because two sides are equal.
PQ is 4 and moreover PR is also 4. Two sides are equal. Therefore, you will be having this to be an isosceles triangle. Is it okay? Yes, ma'am. Hanji Harmeet, what do you want to ask? मैम वो आंसर ये किया था So this is all about exercise 10.2. Two questions are your homework from 10.2. Even 10.3 का third question आपने करना है. And 10.2 के ये जो दो questions रह गए हैं, that will be your homework. And tomorrow we'll start with 10.3. So stay tuned to learn one more type of construction of a triangle in which we will deal with certain angles that we have learned already. So we'll meet tomorrow to learn this.